Hello students, the next topic that we have to study is about seed. It's a small topic of I think 6 to 7 slides. So I, Dr. Smriti Thakur, giving you this PowerPoint presentation on seeds. Now basically seeds, it's an embryonic plant enclosed inside the seed coat having little amount of reserve food material. Reserve food material, depending upon whether it is dicot or monocot, it can be in the form of cotyledons or it can be in the form of the endosperm. ठीक है. एंड सो सीड का मेन फंक्शन क्या हो जाता है? सीड का मेन फंक्शन होता है टू हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है. सो नेक्स्ट है आपका सीड डेवलपमेंट. सो सीड डेवलपमेंट, you know that inside the seed there is embryo having few parts. One is the radicle, another is plumule and cotyledon, testa. Okay. नाउ यहाँ पे जो पिक्चर है, इस पिक्चर में मोनोकॉट सीड का एग्जाम्पल कॉर्न सीड दिया है, यानी कि मेज़. ठीक है. और जो डाइकॉट का एग्जाम्पल लिया है वो है बीन सीड. ठीक है. सो दोनों का साइड बाय साइड रख करके वी कैन कंपेयर द सीड ऑफ दीज टू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स वेराइटी. So here you can see that the reserve food material in monocot is endosperm. Okay. And the dicot, the reserve food material is the cotyledon. Okay. monocot में endosperm है, इसमें dicot है. Now monocot में the seed coat which is present, it is fused with the fruit wall. ठीक है. और इस तरह के फ्रूट को हम कैरियोप्सिस बोलते हैं. एंड हियर द सीड कोट इज कंप्राइज्ड ऑफ टेस्टा एंड टैगमन. सो टेस्टा इज द conversion. It is formed from the outer integument. ओके. ओव्यूल की. और जो टैगमेन है वो इनर इंटीग्यूमेंट जो है उससे डेवलप होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका एम्ब्रियो का, वो किस तरीके से है. ओके. एम्ब्रियो में अगर हम देखते हैं तो एम्ब्रियो में देयर इज the plumule. Okay. The plumule and the radicle. So the region just below the plumule is the epicotyle region, and the region just above the radicle is hypocotyle region. इन दोनों के बीच में जो रीजन होता है उसको मीजोकोटाइल बोला जाता है. ठीक है. MESO मीजोकोटाइल रीजन बोला जाता है. सो हियर ऑल्सो द एम्ब्रियो जो है ये रेडिकल पार्ट है, ये आपका प्लूम्यूल पार्ट है. तो इसके अंदर जो रेडिकल है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, बिकॉज द रेडिकल हियर इज कवर्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड एज द कोलियोराइजा, एंड द प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल. ठीक है. ये हम आगे भी देखेंगे. देन द कॉटिलिडन सीड. ओके. ये मैंने अभी आपको पिक्चर में भी बता दिया है, बट आई कैन रिपीट दिस. डाइकोटिलिडन सीड जो है it is also referred to as X albuminous seeds, and the seed is attached to the fruit wall by a region called as the funicle. ठीक है. और हीलियम जो है, अगर आप बीन देखेंगे तो उसके एक साइड में एक स्कार जैसा प्रेजेंट होता है जिसको हीलियम बोला जाता है. ठीक है.
At the lower end of this car, there is a ridge called raphe, and at the opposite end of this car is the micropyle. ठीक है, so micropyle region में आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे एक हल्का सा पोर दिखेगा, आपको छोटा जैसा पोर दिखेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज माइक्रोपाइल बेसिकली, है ना। और दो कॉटिलिडन्स हैं और एक्सिस इसका कर्व्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है। Now the portion above the cotyledon is radical. Now radical grows to the root system and plumule grows to the shoot system. ठीक है, और ये आपको बता दिया मैंने कि plumule consists of epicotyl, mesocotyl and hypocotyl region. Basically it is the region between the plumule and the radicle. Okay. Then the monocot seed. Monocot seed is referred to as the uh, albuminous seeds, ठीक है, and here the seed coat is fused with the fruit wall, and specifically that kind of seeds are called as the caryopsis, जो कि हम लोग grains जो होते हैं सारे वो caryopsis होते हैं, है ना। And the endosperm is separated from the embryo by a proteinaceous layer called as the aleuron, and the embryo consists of only a single cotyledon, and this single cotyledon in monocot is called as the scutellum, ठीक है, scutellum, राइट। मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटलेटन को स्क्यूटलम बोला जाता है और वो पेपरी होता है। ओके, ऐसे उसमें कुछ रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है, बिकॉज द रिजर्व फूड मटेरियल इज प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म। ओके, एंड द प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल and the radicle is covered by the coleorhiza. Now there is a difference between the एंडोस्पर्म सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्म सीड्स, ये आपको कई बार एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। सो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स जो होते हैं वो डाइकॉट्स के होते हैं, देखो डायग्राम में डाइकॉट बना हुआ है। हियर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है व्हाइल द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एंड इंस्टेड ऑफ दैट कॉटिलिडन्स आर डेवलप्ड विच हैज़ द रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में जो होता है वो मोनोकॉट्स में होते हैं ज़्यादातर, सीरियल्स वगैरह में, कोकोन पाम्स में, है ना। और उसके अंदर एंडोस्पर्म इज़ नॉट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और वो एंडोस्पर्म रहता है वहाँ पे, कॉटिलिडन डेवलप नहीं होता है, कॉटिलिडन जो होता है वो थिन और पेपरी होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, और इसमें एक्सेप्शन है कैस्टर और सनफ्लावर, राइट, जिनके अंदर हमको एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो देखने को मिलता है। ओके, सो दिस स्लाइड इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, इसमें एक्स एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोलते हैं इनको। तो क्वेश्चन जो है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, राइट। सो दीज आर सर्टन डिफरेंसेस विच यू कैन check out and you can study also, you can write down also, क्योंकि क्वेश्चन जो है सिंपली इसी तरीके से आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो ये दोनों आप दोनों टर्म्स जो हैं इंटरचेंजेबल है, तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द स्मॉल लेक्चर ऑन द seeds of dicot and monocots. Thank you very much.